Hello guys, welcome back to the new video which is for the demand and supply of the money or central bank money. So first we will see about the demand for money. In this, first we will talk about money. Money can be of two types, which is currency, coins and bill. And we all know about currency, coins and bills. The other thing can be checkable deposits, which is the checks which are right against the funds deposit in the account of a bank holder. Now the total amount of money in the economy, for that we will also consider the bond. What is bond is something which in when an investor by which guarantees the interest payment in future and have a face value. So we can also say it like the guarantee, or when an investor buys the bond, he borrows the money to other person, and that person will pay the interest rate in future. So the something that guarantees the interest rate or have a face value is called bond. Now how we determine the amount of money and bond in the market? So the amount of money and bond can be determined by two ways, which is of level of ट्रांजेक्शन की एक पर्सन कितना ट्रांजेक्शन कर रहा है एक इकोनॉमी में. अगर कोई पर्सन ज़्यादा ट्रांजेक्शन करेगा तो उसको मनी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, तो वो मनी की अमाउंट उस इकोनॉमी में फिर ज़्यादा होगी. एंड अगर और साथ में इंटरेस्ट रेट बॉन्ड पे कितना है, वो चीज़ भी हमें अमाउंट डिटरमाइन करने में हेल्प करता है मनी और बॉन्ड की. अगर बॉन्ड ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे कर रहा है तो लोग ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे बॉन्ड्स के टूवर्ड्स, सो विच विल इंक्रीज द अमाउंट ऑफ बॉन्ड्स इन द इकोनॉमी. So these two things, first level of transaction and the second interest rate on the bond, determines the amount of money and bond in the economy. Now demand for money is given by the equation which is MD equal to nominal income, that is Y, multiplied by interest rate function, that is LI. So here MD is equal to the demand for money, and dollar is simply a unit which is used for the nominal income. We can, if in Indian terms we want to use, we can use rupees here also. So it is just a unit of currency. Now Y is the nominal income, and L, it is the interest rate function, and the negative sign under the I shows the negative relationship between the interest rate and the money demand, which is if the interest rate will increase, the money demand will go down, and if the interest rate will go down, then money demand will go up. Now we can also see this by a simple diagram. So vertical axis here shows the interest rate, and the horizontal axis shows money. Now there is an inverse relationship. So at first the for the Y income, Y nominal income, this was the money demand curve, and for that M here, and interest rate was, this was the equilibrium positions. Now the money supply, and so nominal money or nominal income increased. So here, which is Y dash, that is greater than Y, so this curve will shift outward and it will increase the money demand in the economy, and the interest rate will be this. Now if we look for the equilibrium position, then we shown money supply by simple M, and money demand we here shown already by Y multiplied by Li. So for the equilibrium position, money supply will be equal to the money demand, and when the money supply will be equal to the money demand, then this will be the equilibrium position, or say money supply will also be equal to the Y
Ly, and this also shows the relationship this is also a LM relationship which we will study later on. And what is LM relationship? We can simply say that it shows the relationship between interest rate and the final output of a economy. We will study it later and discuss it in. Now we show the equilibrium demand by equilibrium position, or say money market equilibrium by simple diagram. So it will be the here interest rate will be on the vertical and money supply or say money will be on the horizontal axis. Now here we show money supply by a vertical curve, or because money supply will be constant, remain constant, because it money supply is given इन एक इकोनॉमी में मनी सप्लाई सेंट्रल बैंक के थ्रू प्रोवाइड की जाती है, तो मनी सप्लाई कांस्टेंट रखेंगे एंड मनी डिमांड विल बी द डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, and the point where they both will intersect will be the equilibrium position and will give us the equilibrium interest rate and money value. So this will be the D point will be the equilibrium position here. Now अगर नॉमिनल इनकम इंक्रीज होती है तो डिमांड कर्व हमने देखा था ऊपर, यहाँ पे ये आउटवर्ड शिफ्ट हुआ था। तो सिमिलरली अगर हम नॉमिनल इनकम इंक्रीज करेंगे तो मनी डिमांड कर्व आउटवर्ड शिफ्ट होगा और मनी सप्लाई कर्व कांस्टेंट रहेगा। जब मनी डिमांड कर्व आउटवर्ड शिफ्ट होगा तो इक्विलिब्रियम पोजीशन हमारी यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाएगी और इसकी वजह से इंटरेस्ट रेट मार्केट में इंक्रीज हो जाएगी। नाउ इफ मनी सप्लाई विल इंक्रीज, अभी हमने देखा था कि मनी डिमांड इंक्रीज हो रही है किस वजह से, नॉमिनल इनकम के इंक्रीज होने की वजह से, लेकिन अब हम देखेंगे कि अगर मनी सप्लाई इंक्रीज होती है तो उसका इंटरेस्ट रेट पे क्या इफेक्ट होगा। अगर मनी सप्लाई इंक्रीज होगी तो जो सप्लाई कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट होगा और से आउटवर्ड, देन फ्रॉम हेयर इट विल शिफ्ट टू दिस, और मनी डिमांड जो है यहाँ पे सेम रहेगा। इसकी वजह से अब मनी डिमांड जो है डाउनवर्ड स्लोपिंग है, तो अर्लियर वो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा था, लेकिन अब जब मनी सप्लाई इंक्रीज हो गई है इकोनॉमी में तो इसकी वजह से ये आउटवर्ड शिफ्ट होने से इक्विलिब्रियम पोजीशन हमारी ए डैश पॉइंट पे आएगी, जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हो जाएगा। सो मनी सप्लाई अगर इंक्रीज होगी तो इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होगा, और अगर मनी डिमांड इंक्रीज होगी तो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा। नाउ मनी सप्लाई को डिटरमाइन करने का मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का एक तरीका होता है जिसको हम ओपन मार्केट ऑपरेशन भी बोलते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन भी 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज कॉन्ट्रैक्शनरी। कॉन्ट्रैक्शनरी में क्या होता है कि मनी सप्लाई को रिड्यूस किया जाता है टू मेंटेन द लिक्विडिटी एंड कंट्रोल द इन्फ्लेशन। तो जब हम कॉन्ट्रैक्शनरी ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है तो उसमें मनी सप्लाई को सेंट्रल बैंक रिड्यूस करता है और उसके लिए वो सेल करेगा सिक्योरिटीज और बॉन्ड्स को, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज को। जब वो मार्केट में सेल करेगा तो उसके बदले में जो मार्केट में एक्सेस और वी कैन से जो मनी सप्लाई होगी, मनी जो ऑलरेडी मार्केट में है, तो वो रिटर्न बैक हो जाएगी सेंट्रल बैंक के पास कॉन्ट्रैक्शनरी में। और इसका ठीक उल्टा एक्सपेंशनरी में होता है। जब एक्सपेंशनरी होते हैं तो उसमें बाय करेगा सेंट्रल बैंक सिक्योरिटीज और बॉन्ड्स को, जिसकी वजह से मार्केट में दोबारा से मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। अब बॉन्ड प्राइस और बॉन्ड यील्ड्स, हमने बॉन्ड देखा था कि बॉन्ड क्या होते हैं। बॉन्ड इन फ्यूचर हमें कि अगर कोई पर्सन बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहा है तो यानी कि वो दूसरे बंदे को जिससे वो परचेज कर रहा है उसको लैंड कर रहा है और उसके बदले में उसको फ्यूचर में इंटरेस्ट पेमेंट मिलेगा। नाउ अब हम ये डिटरमाइन करेंगे कि बॉन्ड के प्राइस और हम इंटरेस्ट पेमेंट किस तरह से डिटरमाइन किया जा सकता है। सपोज एक बॉन्ड है जो हमें इन फ्यूचर पेमेंट प्रॉमिस कर रहा है कि 100 रुपये हमें उस बॉन्ड से मिलेंगे, तो उससे हमें इंटरेस्ट रेट
किस तरह से हम डिटरमाइन कर सकते हैं? तो इसका फॉर्मूला होगा I विल बी इक्वल टू 100, दैट इज द फ्यूचर पेमेंट फ्रॉम दैट bond minus the price of bond today, that is PB, and divided by PB. It is simply the formula of finding percentage. So in this way, if we go, then interest rate will be inversely related to the price of bond today. So if price of bond today will be more, then interest payment will go down, or vice versa. So there will be a negative relationship between interest rate and price of bond today. अब हम अगर प्राइस ऑफ बॉन्ड को अभी हमने डिटरमाइन किया कि इंटरेस्ट रेट कैसे फाइंड आउट की जाती है, लेकिन अब हम डिटरमाइन करेंगे कि प्राइस ऑफ बॉन्ड भी किस तरह से डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर हम इसी इक्वेशन को थोड़ा इस वे में अगर हम ट्राई करें कि प्राइस ऑफ बॉन्ड को इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, देन दिस विल बी द इक्वेशन, और यहाँ से हम पीबी को जो नेगेटिव है इसको इस साइड लेके जाएंगे तो दिस विल बी पॉजिटिव, एंड पीबी हम कॉमन लेंगे, देन इट विल बी पीबी in bracket 1 plus interest equal to 100. 100 here is the payment that a bond promise in future. So अगर हम इसको थोड़ा अरेंज करेंगे, then it will be equal to the, that is the price of bond today will be equal to the 100 divided by 1 plus interest payment of bond. Now for expansionary open market operation, फॉर दिस एक्सपेंशनरी के लिए हमने देखा था कि सेंट्रल बैंक बाय बैक करता है, एंड फॉर दैट एंड ड्यू टू दिस द डिमांड फॉर बॉन्ड विल इंक्रीज, क्योंकि अगर सेंट्रल बैंक बाय कर रहा है तो मतलब कि बॉन्ड्स की डिमांड इंक्रीज कर रहा है वो, और अगर डिमांड इंक्रीज होगी तो बॉन्ड्स का प्राइस भी इंक्रीज हो जाएगा। और हमने देखा है कि प्राइस और इंटरेस्ट रेट में नेगेटिव रिलेशनशिप है, तो इसकी वजह से अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो इंटरेस्ट रेट डाउन जाएगी। और अगर कॉन्ट्रैक्शनरी ओपन मार्केट ऑपरेशन है तो सेंट्रल बैंक सेल करेगा बॉन्ड्स को, जिसकी वजह से बॉन्ड की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी और उसका प्राइस फॉल कर जाएगा और इंटरेस्ट रेट राइज कर जाएगा। अब हम इसके बाद में देखते हैं सप्लाई एंड डिमांड फॉर द सेंट्रल बैंक मनी, कि सेंट्रल बैंक जो एक इकोनॉमी में होता है उसकी मनी की डिमांड एंड सप्लाई किस तरह से डिटरमाइन की जाती है। तो सप्लाई तो सेंट्रल बैंक के डायरेक्ट कंट्रोल में होती ही है, अब डिमांड उसकी सेंट्रल बैंक के मनी की किस तरह से डिटरमाइन होगी, वो दो चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि उस इकोनॉमी में करेंसी की कितनी डिमांड है, और रिजर्व बैंक जो रिजर्व रखता है उसकी कितनी डिमांड है। अब करेंसी के डिमांड तो हम सिंपली फाइंड आउट हो जाती है, लेकिन बैंक के रिजर्व्स की कितनी डिमांड है वो चेकेबल डिपॉजिट्स के थ्रू फाइंड आउट होती है और डिटरमाइन की जाती है कि बैंक होल्डर्स कितने चेकेबल डिपॉजिट्स राइट कर रहे हैं अपने फंड्स के अगेंस्ट में, which that will determine the demand for reserves by bank. So these both, so which is demand for reserve by bank and currency demand, central बैंक की मनी के डिमांड को डिटरमाइन करने में हेल्प करेगी। सो हम इसको इस तरह से भी देख सकते हैं इक्वेशन के टर्म में कि सेंट्रल बैंक डिमांड, करेंसी की डिमांड होती है कि टोटल डिमांड का कितना पार्ट सी हेयर शो करेगा, सी यहाँ पे शो करेगा कि कितना प्रोपोर्शन लोग करेंसी के फॉर्म में रखना चाह रहे हैं टोटल मनी डिमांड का, कि अगर 100 है और उसका कितना प्रोपोर्शन विच इज सपोज 60%, अगर 100 करेंसी टोटल मनी डिमांड एक इकोनॉमी में 100 है और अगर उसका 60% लोग करेंसी के फॉर्म में रखना चाह रहे हैं तो टोटल करेंसी की डिमांड होगी एक इकोनॉमी में 60। सो दिस शोज द प्रोपोर्शन ऑफ मनी डिमांड जो लोग अपनी करेंसी के फॉर्म में रखना चाह रहे हैं। और अगर हम इसको 1 - C कर देंगे तो ये हमें दिखाएगा कि अदर देन करेंसी लोग कितना डिपॉजिट्स वगैरह रख रहे हैं, जो कि हमें चेकेबल डिपॉजिट्स की डिमांड देगा। अब अगर हम आगे देखेंगे कि रिजर्व बैंक की जो
बैंक के जो रिजर्व्स की डिमांड होती है वो हम आगे देखेंगे। थीटा इक्वल MD, थीटा इक्वल टू चेकेबल डिपॉजिट्स विच इज DD। सो थीटा हमने यहाँ पे DD हमने निकाल ही लिया। यहाँ पे हमने देखा ही है ऑलरेडी, लास्ट वीडियो में भी देखा था कि 1 - C MD विल बी द डिमांड फॉर द चेकेबल डिपॉजिट्स, एंड रिजर्व बैंक के रिजर्व्स की डिमांड होती है थीटा मल्टीप्लाई बाय चेकेबल डिपॉजिट, डिमांड फॉर चेकेबल डिपॉजिट्स। सो अब इफ वी विल ऐड दीज बोथ, अगर हम करेंसी की डिमांड और रिजर्व बैंक की डिमांड को यहाँ पे जो हमने इसको शो किया है HD शोज द डिमांड फॉर सेंट्रल बैंक मनी, तो अब अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे सो इट विल बी इक्वल टू दिस विच विल बी द डिमांड फॉर सेंट्रल बैंक मनी। ये हम यहाँ पे अलग से भी देख सकते हैं, ये हमने शॉर्ट वे में देख लिया। यहाँ पे हम इसको देख भी सकते हैं कि डिमांड फॉर मनी जो हमने देखा था कि MD की वैल्यू होती है मनी की डिमांड YLI, और यहाँ पे नेगेटिव रिलेशनशिप रहेगा इंटरेस्ट रेट के साथ इसका, और करेंसी की डिमांड होगी CMD। यहाँ पे C शो कर रहा है प्रपोर्शन ऑफ मनी होल्ड इन करेंसी, यानी कि टोटल मनी डिमांड का कितना प्रपोर्शन लोग करेंसी के फॉर्म में होल्ड करना पसंद कर रहे हैं और प्रीफर कर रहे हैं। एंड DD विल गिव द रिलेशनशिप फॉर द डिमांड ऑफ चेकेबल डिपॉजिट। सो अगर C प्रपोर्शन और C% लोग करेंसी के फॉर्म में रख रहे हैं एक यूनिट का, देन 1 - C विल गिव द डिमांड फॉर द चेकेबल डिपॉजिट्स। सो सपोज कि एक इकोनॉमी में दो ही तरह की यूनिट है, सपोज 10 रुपीज़ और 20 रुपीज़ नोट है, लेकिन अगर और C हम रख लेते हैं कि हम इसकी वैल्यू को C प्रपोर्शन से लेंगे कि भाई C की जो वैल्यू होगी वो हमें दिखाएगी कि लोग कितना 10 रुपीज़ के नोट को रखना प्रीफर कर रहे हैं। और सपोज 50% लोग C की वैल्यू 50% रख लेंगे, यानी कि एक इकोनॉमी में जो भी मनी डिमांड होगी उसका 50% 10 रुपीज़ के नोट में लोग प्रीफर कर रहे हैं। यानी कि टोटल मनी डिमांड अगर 100 रुपीज़ है तो उसका 50%, सपोज 50% लोग इसमें 10 रुपीज़ के नोट में प्रीफर कर रहे हैं। बाकी की जो बची हुई होगी वो 20 रुपीज़ के नोट में, जो कि हम 1 - C से निकालेंगे। सो इस तरह से हम दिस विल गिव द वैल्यू ऑफ चेकेबल डिपॉजिट्स। सो 1 - C मल्टीप्लाई बाय MD विल गिव द डिमांड फॉर चेकेबल डिपॉजिट्स। नाउ जो हमने देखा था कि बैंक के रिजर्व्स की डिमांड किस तरह से फाइंड आउट होगी, सो हियर वी विल सी द डिमांड फॉर रिजर्व्स। सो द लार्जर द अमाउंट ऑफ चेकेबल डिपॉजिट, द लार्जर द अमाउंट ऑफ रिजर्व्स द बैंक मस्ट होल्ड, कि जितनी ज़्यादा डिमांड होगी चेकेबल डिपॉजिट्स की, जितनी हायर वैल्यू इसकी होगी उतनी ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी बैंक रिजर्व्स की। So there will be a direct relationship between checkable deposits and reserves of bank. Now theta will show the reserve ratio, which is the amount of reserve bank hold per dollar of checkable deposits or per rupee of checkable deposits. Here dollar is just a unit of currency. सो एज वी शो हेयर कि टोटल मनी डिमांड का C प्रपोर्शन लोग करेंसी के फॉर्म में होल्ड करना चाह रहे हैं। सो सिमिलरली हेयर थीटा विल ऑल्सो शो द सेम थिंग। नाउ दिस इज द डिमांड फॉर रिजर्व ऑफ बैंक, which is R equal to theta multiplied by D, and D is the checkable deposits. If people want to hold D checkable deposits इन डिपॉजिट देन हेयर, तो हमने देखा ही था कि ये चेकेबल डिपॉजिट्स की वैल्यू हमने यहाँ पे ये फाइंड आउट की थी ऑलरेडी। ये इक्वेशन हमने अर्लियर भी फाइंड आउट की थी लास्ट वीडियो में। तो अगर हम यहाँ पे ये D की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे तो वी विल गेट द इक्वेशन नंबर 6, विच इज R इक्वल टू थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 - C multiply MD.
Now the demand for central bank money will be equal to the demand for currency and demand for reserves by bank, which is CUED plus RD. अब हम इक्वेशन जो हमने यहाँ पे ये वैल्यू फाइंड आउट की थी और ये वैल्यू, इन दोनों को हम यहाँ पे ऐड करेंगे। यहाँ से हम MD को कॉमन लेंगे और इसके बाद MD कॉमन लेने के बाद हमारे पास वैल्यू आएगी C प्लस थीटा ब्रैकेट 1 माइनस C ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय MD। अब हम अगर मनी डिमांड की वैल्यू यहाँ पे हमने देखी थी, मनी डिमांड की वैल्यू YLI है। यहाँ पे हम MD की वैल्यू पुट कर देंगे और दिस विल गिव अस द डिमांड फॉर सेंट्रल बैंक मनी विच इज C प्लस थीटा ब्रैकेट 1 माइनस C ब्रैकेट क्लोज YLI. Y is the nominal income, L is the interest rate function, C is the proportion in which people want to hold currency and theta will be the reserve ratio. अब हम इंटरेस्ट रेट के लिए हम इक्विलिब्रियम पोजीशन देखेंगे। फॉर इक्विलिब्रियम पोजीशन मनी सप्लाई विल बी इक्वल टू मनी डिमांड। अब हम सपोज करो कि लोग सिर्फ एक इकोनॉमी में करेंसी होल्ड करना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब कि रिजर्व्स की रेशियो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जहाँ भी मतलब कि C की वैल्यू मतलब 100% करेंसी की C की वैल्यू 100% हो जाएगी विच विल बी 1। हम C की जगह इस इक्वेशन में 1 पुट करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे अगर हम 1 पुट करेंगे थीटा ब्रैकेट 1 माइनस 1 एंड दिस, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ये 1 रहेगा। मल्टीप्लाई करके सोल्व करने पर हमारे पास H की वैल्यू आएगी YLI। अब अगर लोग करेंसी होल्ड ही नहीं करना चाह रहे बिल्कुल भी, सिर्फ रिजर्व्स को होल्ड कर रहे हैं, तो C की वैल्यू हम 0 पुट कर देंगे और विच विल गिव अस द वैल्यू ऑफ सेंट्रल बैंक मनी इक्वल टू थीटा YLI। अगर कुछ चेकेबल डिपॉजिट्स रख रहे हैं और कुछ करेंसी रख रहे हैं, यानी कि हमारी जो C की वैल्यू है वो 1 से कम होगी, 1 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकती। अगर 1 से कम रहेगी तो हमारी जो ब्रैकेट की वैल्यू है वो भी 1 से लेस ही आएगी। दिस शोज कि सेंट्रल बैंक की जो मनी है उसकी ओवरऑल डिमांड वो कम रहेगी, हमेशा ओवरऑल मनी की जो डिमांड रहेगी। अब ये क्यों होगा, ये हम मनी मल्टीप्लायर से हम चेक करेंगे कि भाई ओवरऑल मनी डिमांड से सेंट्रल बैंक की जो डिमांड, सेंट्रल बैंक की मनी है उसकी डिमांड कम क्यों रहती है। कि अगर सेंट्रल बैंक की हमारे पास ओवरऑल डिमांड 100 रुपीज़ की और सेंट्रल बैंक की मनी डिमांड अगर 90 रुपीज़ ही है, तो हम बाकी की जो 10 रुपीज़ की मनी डिमांड है वो कहाँ से मीट आउट करते हैं, वो हम मनी मल्टीप्लायर से समझेंगे। उससे पहले हम इक्विलिब्रियम पोजीशन के थ्रू इंटरेस्ट रेट डिटर्मिनेशन देख लेंगे। तो हमने पहले भी देखा है कि वर्टिकल एक्सिस पे इंटरेस्ट रेट एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे मनी को हम रखेंगे, और यहाँ पे हम सेंट्रल बैंक के मनी की बात कर रहे हैं, तो इस केस में हम सेंट्रल बैंक मनी रख लेंगे हॉरिजॉन्टल पे। और सप्लाई हमने मनी की देखी ही थी कि वर्टिकल होती है, कांस्टेंट होती है, इसीलिए हम इसको वर्टिकल रखेंगे सेंट्रल बैंक की मनी को। और डिमांड डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी और जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा वो यहाँ पे आएगा, और जहाँ से इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा वहीं इक्विलिब्रियम वैल्यू आ जाएंगी इंटरेस्ट की और इसकी। अगर इंटरेस्ट ज़्यादा रहेगी, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा रहेगी, तो डिमांड कम हो जाएगी। अब हमने देखा था कि मनी मल्टीप्लायर कि हमने ये देखा था कि अगर सेंट्रल बैंक की मनी की डिमांड जो है वो ओवरऑल डिमांड से कम रहती है, यानी कि अगर ओवरऑल डिमांड 100 की है और तो सेंट्रल बैंक की डिमांड 100 से कम की रहेगी, तो बची हुई जो मनी डिमांड है वो कैसे मीट आउट करेंगे इकोनॉमी में। तो ये सिंपली मनी मल्टीप्लायर से होता है। मनी मल्टीप्लायर क्या शो करता है कि भाई हमारे पास जो अवेलेबल मनी या रिजर्व्स जो भी हैं उससे हम कितना मनी क्रिएट किया जा सकता है, कि हमारे पास जो अवेलेबल मनी है वो कितनी एक्सेस मनी क्रिएट कर सकती है। सपोज कि एक बैंक में रिजर्व्स रखे हुए हैं 100 रुपीज़ के, तो जो हमारा CRR और ये सब को हटा के जो बैंक के पास बचता है जिसको बैंक लैंड आउट कर सकता है,
उसको उस पे उसको जो इंटरेस्ट रेट वगैरह मिलेंगे तो वो सब शो करता है कि मनी क्रिएशन कितना किया जा सकता है। सो हेयर हम देखते हैं कि जो बैंक की सेंट्रल बैंक की मनी सप्लाई है वो हमने देखी थी, ये इक्वेशन हमने अर्लियर फाइंड आउट की। अब हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो हम जो ब्रैकेट की वैल्यू है विच इज सी प्लस थीटा ब्रैकेट 1 माइनस सी, इसको हम इधर शिफ्ट करेंगे तो ये अपोन में आ जाएगी और ये वैल्यू बन जाएगी ये। सो ये हमारे पास डिमांड ऑफ मनी हो गई टोटल, हमने देखा था मनी। सो दिस इज द ओवरऑल डिमांड ऑफ मनी इन एन इकोनमी। यहाँ तक हम देख रहे थे सेंट्रल बैंक के। अब ये जो हमारे पास वैल्यू है ये ओवरऑल डिमांड हो गई, और ये जो वैल्यू है एच अपॉन सी प्लस थीटा 1 माइनस सी, ये हमें सप्लाई ओवरऑल सप्लाई ऑफ मनी शो करेगा। सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू द मनी मल्टीप्लायर। और ये वैल्यू हमारी हमें पता है कि 1 से छोटी रहती है। सो दिस विल हेल्प अस मीट आउट द ओवरऑल डिमांड। ये हमें जो ओवरऑल डिमांड जो हमारी सेंट्रल बैंक की मनी से ज़्यादा थी उसको मीट आउट करने में हेल्प करेगी सप्लाई ऑफ मनी के थ्रू। सो सेंट्रल बैंक की मनी और हाई पावर्ड मनी को हम इक्वल रखते हैं, क्योंकि जो एच में जो इंक्रीज होता है विच इज दिस विल लीड टू द मोर देन 1 for 1 इंक्रीज इन ओवरऑल सप्लाई ऑफ मनी। इसी को हम मल्टीप्लायर कहते हैं। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू।